वेलकम टू हर घर पाठशाला। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द फ्लूइड्स एट मोशन। Now you have studied about the properties of bulk matters, and now we are going to study about hydrodynamics. There is a streamline flow. What is streamline flow that we have to see? Streamline. What is streamline basically? What is streamline flow? I will cite an example. Suppose I have first of all I will cite an example. Suppose I have this is a tube. In this tube, suppose water is flowing, and this tube is horizontal. Suppose ये tube is horizontal है, यहाँ पे liquid is flowing in this tube. How the liquid will flow? Liquid flow होगा तो इसके molecules यहाँ से यहाँ को move करेंगे. अच्छा, molecules यहाँ से यहाँ को अगर move करेंगे तो molecules को move करने के लिए हमें यहाँ से pressure apply करना पड़ेगा. We have to pump the molecules from here to there. Then the molecules will move. Now molecules start moving. Then there will be a resistance force that will act in this direction. Now what will happen? The molecules, when we provide the extra pressure to these, then the molecule will float and the liquid will flow from here to there. Either this can also flow with the gravity also. Molecules also flow with the gravity. यहाँ से हमें कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं, ग्रेविटी के साथ भी molecules के करते हैं फ्लो कर सकते हैं. जब molecules flow होते हैं तो उसके types of motion होता है कि किस तरह से molecules आपके flow होते हैं, किस तरह से आपका liquid flow करता है, हमें उसको देखना है. मान लीजिए हमारे पास मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की अगर बात करूं, मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 ये 5 पार्टिकल्स हैं. पार्टिकल नंबर 1 2 3 4 5. Take another situation. Suppose these molecules are moving. Suppose they will go from here to here. 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Now the molecules will move to here. 1 2 3 4 5. See 1 2 3 4 5. See this motion. Here these molecules they are moving with constant velocity, constant speed से molecule move कर रहे हैं. That's why they acquire the same position. Here also the same position. इस तरह का motion जिसमें कि velocity constant होती है और जो molecules होते हैं वो constant velocity से move करते हैं, इस तरह के motion को हम streamline flow बोलते हैं. इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग चले हैं तो इस जितनी इसकी स्पीड है उतनी इसकी स्पीड है, मींस ये मॉलिक्यूल्स इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस के, इस तरह से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे. या मैं एक और तरीके से आपको बताऊं, मान लीजिए मेरे पास अगर कोई पाइप है, ऐसे सपोज करिए कोई पाइप है और उस पाइप में मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं. तो आपको मैं पहले बताता हूं, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज A1, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2. तो मॉलिक्यूल जब यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे पेन है तो इसका ये एरिया ऑफ क्या है? क्रॉस सेक्शन है. दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पेन. Toward this side the area of cross section is small. See this tube have not equal area of cross section. Now what will happen? Suppose at this point this is the molecule. This molecule will start from here. यहाँ से move करना शुरू किया with some velocity. When it will comes to point 1, it will acquire the velocity here, that is suppose b1. When it comes to point B, this molecule comes to here, then it will acquire velocity b2. Here the velocity b3. Means at every point, at every cross section, the velocity remain constant. इस तरह का जो motion होगा उसे हम streamline motion बोलेंगे. That is the streamline flow. That is the streamline flow. This is the case for streamline flow. In this case what will happen? Velocity remains, means velocity is constant, your speed is constant. This motion is not disorderly motion, means molecules will move with equal spacing. Suppose I will cite an example. Suppose I have a molecule, so this is 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Now what will happen? The molecule will move from here to there. Suppose 1 2 3 4 5. What will happen? Suppose the molecule number 5 comes to here and the 4 comes to here. Suppose this is the molecule number 2 and this is 3 and this is 1. So what will happen now? See in this case. Another example we can say, suppose 1 2 3 4 5 molecules are there. Suppose here the molecules number 2 is here, 1 is here, 3 is here, and 4 is here and 5 is here. See what will happen in these cases. This molecule number 1, this will see, this is molecule number 1. This will remain its position, but what will happen to the 2 number molecule? It will go to position number 3. See here, 2 number molecules that will 4 number molecules that will shift to position which one your 4 5 कहाँ आ गया? इस तरफ पर आ गया. 4 कहाँ चला गया? आगे शिफ्ट कर गया जाकर के. तो जैसे 2 नंबर जो है कहाँ को? 2 नंबर भी आगे शिफ्ट कर गया जाकर के. इस तरह से देखिए ये मॉलिक्यूल जो डिसऑर्डरली मोशन हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी वो डिफरेंट हो जाएगी. मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, दैट्स व्हाई दे विल क्रॉस. रियल लाइफ में हम ऐसे एग्जांपल, जैसे हम लोग कार का ओवरटेक करते हैं तो हम लोग खुद चलते हैं, स्कूल में हम लोग चलते हैं तो वो हमारा जो मोशन होता है वो डिसऑर्डरली होता है. कोई एक दूसरे से आगे निकल जाता जाकर के, यहाँ से मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहे हैं. क्रॉस कब करेंगे? जब इनकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी. लेकिन बेटा ये तो एक पाइप के अंदर होंगे. जब ये पाइप के अंदर होंगे, जब ये मॉलिक्यूल्स आगे को क्रॉस करते हैं, इस पाइप के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, इस तरफ को प्रेशर लगाएंगे.
इन इस केस में पाइप के ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगी, फोर्स विल एक्ट ऑन द पाइप। इन दिस केस देयर इज नो फोर्स दैट विल एक्ट ऑन द पाइप। इस केस में पाइप के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जो हमारी फ्लो जिस पाइप में से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो यहाँ पे पाइप का टूटने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पाइप आपकी टूट सकती है। क्यों टूट सकती है? क्योंकि यहाँ पे डिसऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। डिसऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरह के मोशन को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्बुलेंट फ्लो। तो हमारे पास दो तरह का मोशन होता है। एक होता है हमारे पास स्ट्रीमलाइन, और दूसरा कौन सा होता है? स्ट्रीमलाइन, और दूसरा होता है हमारे पास बेटा टर्बुलेंट फ्लो। इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी क्या रहती है? वेलोसिटी इज डिफरेंट। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज या पार्टिकल इज different. Here no force is exert on the pipe. No force is exert on the tube. But here force is exert on the tube. Velocity of molecule is different, and molecules move with different speeds. Here the velocity remains constant. Here the velocity remains constant. There is a difference between, see, this is the streamline flow and this is the turbulent flow. Now turbulent flow, in real life you will see the water is flowing in a river. That is the case of turbulent flow. And if I will talk about the streamline flow. Suppose a streamline flow का मैं example, just suppose करिए टैप से वाटर आ रहा है। देखिए टैप से वाटर आ रहा है, ऐसे पहले ऐसे आएगा वाटर, फिर क्या होगा वाटर को, it will ऐसे क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, यहाँ पे फोम आएगी और इस तरह से वाटर। अब यहाँ पे ऐसे क्यों आया और यहाँ पे क्यों हुआ? देखिए यहाँ से क्या प्रॉब्लम है कि जब ये यहाँ से फ्लो कर रहा था वाटर, तो यहाँ शुरू में बिल्कुल स्मूथ मॉलिक्यूल चलेंगे, और जैसे नीचे जाएंगे तो मॉलिक्यूल स्कैटर्ड हो जाएंगे, एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस तरह के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। टैप से जो वाटर आ रहा है। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे हम लोग एक धूप जलाते हैं, तो धूप से शुरू में धुआं बहुत अच्छा था, ऊपर जाके ऐसे स्कैटर्ड हो जाता है, ऊपर जाके ऐसे स्कैटर हो जाता है। स्कैटर क्यों? क्योंकि वहां टर्बुलेंट फ्लो हो गया, धूप जाकर पास में क्या होगा आपका? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बहुत ही मुश्किल होता है रियल लाइफ में, लेकिन हम लोग टर्बुलेंट फ्लो, जैसे हमारी व्हीकल चल रहा है, एक व्हीकल दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कौन सा है वो? टर्बुलेंट मोशन हुआ, वो टर्बुलेंट मोशन हुआ। इस तरह से वाटर जब फ्लो करता है या लिक्विड जब फ्लो करता है, कोई भी, जैसे अल्कोहल हो गया, कोई भी लिक्विड फ्लो करेगा, तो इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल हमारे पास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इवन मान लीजिए कि क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल सपोज करिए हमारे पास कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड फ्लो करता है वो यही घूमता रहता है, इस तरह से घूमना शुरू कर देता है, एडिस बनाना शुरू कर देता है। मींस मैक्सिमम एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है एडिस बनाने में। तो ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो दिस विल हैपन। तो दिस व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? बेसिकली स्ट्रीमलाइन इज द स्ट्रेट और कर्व पाथ। स्ट्रीमलाइन क्या होती है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। स्ट्रीमलाइन इज स्ट्रेट और कर्व पाथ टेंजेंट टू एट एवरी पॉइंट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। स्ट्रीमलाइन is a straight or curved path tangent to every point gives us the direction of fluid flow। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ट्यूब है, ट्यूब में से इस तरह की हमारे पास ट्यूब है, सपोज करिए इसमें से देखिए क्या होता है, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये हमारी बन गई स्ट्रीमलाइन 1, दिस इज स्ट्रीमलाइन नंबर 2, स्ट्रीमलाइन नंबर 3। इस तरह से हमारी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंस होती है। स्ट्रीमलाइंस, दीज आर द स्ट्रीमलाइंस। इस तरह से हमारा लिक्विड क्या करता है? फ्लो करता है स्ट्रीमलाइंस के फ्लो। तो ये अगर हम इसका टेंजेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये कर्व पाथ है, यहाँ से हम लोग टेंजेंट लें, इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या देगा हम लोगों को? फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन देगा। दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रीमलाइन। और ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होती है? ट्यूब बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन, दैट इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होगा आपका? बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, दैट इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो मींस बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। ये हमारा ट्यूब ऑफ फ्लो है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और मैं एक और आपको बता दूं, नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू स्ट्रीम line cannot intersect each other। दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जब अगर मान लीजिए दो स्ट्रीमलाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो वहां फ्लूइड फ्लो की दो डायरेक्शन बनेगी, क्योंकि यहां पे कितने टेंजेंट्स आ रहे हैं? 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन देती है,
जब हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो केस के लिए दो स्ट्रीमलाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो स्ट्रीमलाइन मोशन इज दैट मोशन इन विच द वेलोसिटी मींस कांस्टेंट। मींस one more difference is there. It means if the liquid will move with a certain velocity, with a velocity that is small velocity, then the flow is a streamline. If the liquid will move the velocity, more velocity, then the flow of the fluid that will become your that is turbulent. See, but that velocity that is called critical velocity. Means if liquid moves below critical velocity of fluid, then the flow is streamline, and above critical velocity the flow is turbulent. Means above the critical velocity the flow is turbulent. But what is the critical velocity? Critical velocity is that velocity below which the flow of the liquid is streamline, and above which the flow of, उसके ज्यादा अगर velocity बढ़ जाती है तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी, हर लिक्विड की अपनी अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। अगर उस क्रिटिकल वेलोसिटी को पार हो जाती है तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाता है? आपका टर्बुलेंट हो जाता है। और बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन। जैसे मैंने आपको टैप का एग्जांपल दिया था, मान लो टैप से पानी आता है, टैप से शुरू में पानी कैसे आएगा? बिल्कुल स्मूथ आएगा, देन इट विल स्कैटर्ड इन दिस टाइप, इट विल स्कैटर्ड। Why it is happened? Because here the velocity is less. Here the velocity is less than the liquid velocity is less than the critical velocity, then liquid will flow, that is streamline. But what will happen when it comes here? Then as you know, due to gravity, the velocity of water molecule that increases. If the velocity will increase, that crosses the limit of critical velocity. Then after the critical velocity, the flow of the liquid become, that is turbulent. क्या बन जाएगा? Turbulent. Flow of the liquid is turbulent. मींस स्ट्रीमलाइन में एक स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होगा अगर लिक्विड कम वेलोसिटी से मूव करेगा, और इफ द इट विल मूव विद हाई वेलोसिटी, मोर वेलोसिटी, लिक्विड विल मूव विद द मोर वेलोसिटी, then this flow of the liquid become turbulent. So this is your streamline flow. There is one more flow that is called laminar flow. Laminar flow means the liquid will actually, streamline flow is a laminar flow basically. Laminar means liquid will flow in layers. Laminar flow. जो आपका लिक्विड है वो किस तरह से मूव करेगा? जैसे एक ट्यूब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सरफेस है, तो लिक्विड किस तरह से मूव करेगा? लेयर्स में मूव करेगा। जैसे एक लेयर ये है, इसके ऊपर दूसरी लेयर ये है, इस तरह से लेयर्स में जब लिक्विड फ्लो करता है, उस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड विल फ्लो इन लेयर्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, लैमिनर फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही हम लैमिनर फ्लो बोल सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, वन इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो एंड सेकंड इज कॉल्ड योर streamline flow, streamline flow, and that is a turbulent flow. Means you have to remember this thing. Streamline flow क्या होता है? Streamline flow में velocity of the molecule same रहती है, velocity is same. That is the case for which one? Streamline. And for turbulent flow, the velocity of the velocity is different. And here velocity of the liquid is less than the critical velocity. BC means critical velocity, and here the velocity is greater than the critical velocity. Velocity of the liquid is greater than the critical velocity, then the flow is said to be your which one? Turbulent flow. If the velocity is less than the critical velocity, then the flow is called your that is a streamline flow. So this is your streamline flow. Liquid will moves in layers. So I have cited an example of streamline flow as well as turbulent flow. If the water is flowing very fastly, you will see in the river, water is flowing very fastly. We can say that flow is which one? Your turbulent flow. बाढ़ आ रही है, बाढ़ के केस में कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा। लेकिन वाटर अगर आप कह देते बिल्कुल काम वाटर होगा, धीरे धीरे से चला होगा स्मूथली, वी कैन से दैट फ्लो इज व्हिच वन? योर लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो सो स्ट्रीमलाइन फ्लो एज वेल एज लैमिनर फ्लो एज वेल एज योर टर्बुलेंट flow. Now we have a principle of flow of liquid that is called equation of continuity. That is equation of continuity. Principle of continuity. Principle of continuity. अब principle of continuity क्या है? मान लीजिए मेरे पास जो लिक्विड है, सपोज करिए मेरे पास जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है, इस तरह से मेरे पास ऊपर का जो सरफेस है लिक्विड का, ये बिल्कुल ये ऊपर का तो बिल्कुल प्लेन होगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ से लिक्विड फ्लो करेगा किसी रिवर में, इस तरह से फ्लो करेगा स्ट्रीमलाइन की फॉर्म में। मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से मेरे पास जो ट्यूब है मेरी, यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं, तो इस तरह से उठी होगी।
फिर यहाँ जैसे से मान लीजिए यहाँ जैसे से फिर ऐसे है, फिर यहाँ से कुछ ऐसे ऊपर तक उठा है, तो यहाँ से डेप्थ क्या होगी आपकी, इस तरह से डेप्थ क्या होगी, यहाँ पे स्टोन पड़े हुए तो यहाँ पे डेप्थ कम होगी, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह का केस भी ऐसे भी है, आपकी जो ट्यूब है तो इसमें यहाँ पे डेप्थ बहुत ज्यादा है, देखिए यहाँ डेप्थ ज्यादा है, आपकी ट्यूब इस तरह से सपोज कुछ इस तरह से आपका रिवर है, जब रिवर इस तरह से है, ट्यूब इस तरह से आपकी, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रीम लाइंस होंगी यहाँ से तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे से चली जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आकर क्या होगा, ये ट्यूब यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ से भी चली जाएगी ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे आकर के ऐसे निकल जाएगी। अब यहाँ पे आएगी स्ट्रीम लाइन आपकी, तो ये ऐसे करेगी और यहाँ से ऐसे करके और यहाँ निकल जाएगी। अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि इसका ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ यू सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। मतलब यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वर्ड यूज करो बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। जैसे एक पाइप मोटी है तो उसके एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, पाइप पतली है तो उसके एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, जैसे यहाँ A1 है, यहाँ पे A2 है, मान लीजिए यहाँ पे A3 है और यहाँ पे क्या है, A4 है, डिफरेंट एरिया क्रॉस सेक्शन भी है। द लिक्विड विल मूव with the here that with the different velocity, see भाई we will see this case। अब यहाँ पे एक मैं आपको बात करूं, चाहे यहाँ से पाइप पतली है, चाहे यहाँ से और पतली है, यहाँ से और मोटी है, लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ पे लिक्विड का, मान लीजिए यहाँ से हमारे पास 10 लीटर लिक्विड यहाँ से निकला, तो अल्टीमेटली एक सेकंड में कितना जा रहा है यहाँ पे इस पाइप के अंदर, 10 लीटर पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लो पर सेकंड इज 10 लीटर। एक सेकंड में मान लो यहाँ एंटर कर रहा है 10 लीटर, तो यहाँ से भी कितना निकलना चाहिए, 10 लीटर पर सेकंड। इसलिए यहां से भी कितना निकलेगा, 10 लीटर पर सेकंड, यहां से भी कितना निकलेगा, 10 लीटर पर सेकंड, और यहां से भी 10 लीटर पर सेकंड। इफ यू सी इन ऑल केसेस द लिक्विड विल, बिकॉज अगर ऐसा केस हो जाए कि यहां से 9 निकले तो क्या है, पाइप उस 1 लीटर को खा गई, द लिक्विड विल गो फ्रॉम, भी कहां गया, तो ऐसे स्टोर होता जाएगा, स्टोर होता है, पाइप तो स्टोर नहीं कर सकती है, या ऐसा तो कोई इसके बीच में सोर्स नहीं कि पाइप उसको स्टोर कर ले। तो लिक्विड अगर हम यहां से 10 लीटर डालेंगे तो यहां से कितना निकल जाएगा, 10 लीटर। ये तो कॉमन हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि यहां से 10 लीटर डालेंगे तो यहां से 10 लीटर निकलेगा एक सेकंड में। लेकिन एक बात और है, अगर यहां पे देखिए, यहां जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी के बारे में आपका जिक्र है, मान लो यहां पे वेलोसिटी v1 है, अच्छा v1 वेलोसिटी है, अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर ये तो एरिया कम, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी यहां वेलोसिटी, क्योंकि लिक्विड यहां क्लोज हो गया, जब क्लोज हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रीम लाइन क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रीम लाइन क्या हो चुकी है आपकी, ये स्ट्रीम लाइन क्लोज है, ये स्ट्रीम लाइन कहाँ है, दूर दूर है, ये स्ट्रीम लाइन और क्लोज होगी। जितनी स्ट्रीम लाइन क्लोज हो जाती है उतनी ही वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, मींस यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी v3 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v4 है। ओके, तो व्हाट इज, वी कैन से व्हाट इज द a1 b1, अगर मैं a1 को b1 से गुणा करूं तो a1 और b1 मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 into b1। व्हाट इज a1 into b1, सी suppose I have a pipe, this is a pipe, now its distance is suppose d। Now I will add the liquid 10 लीटर from here, 10 लीटर लिक्विड में यहां से डालता हूं, उसका वॉल्यूम एक सेकंड में डाल रहा हूं कितना, 10 लीटर। जब एक सेकंड में 10 लीटर डाल रहा हूं तो लगभग इसने इतना एरिया कवर कर लेगा, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम कॉल्ड, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, सी एरिया इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आपका d आ गया, अपॉन क्या आ गया, टाइम, टाइम कितना है 1 सेकंड, तो एरिया इनटू डिस्टेंस दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। व्हाट इज a1 b1 मींस व्हाट इज d अपॉन t कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड v, दिस इज v1। व्हाट इज a1 b1 सोर्स, a1 b1 सोर्स दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम लिक्विड का अंदर जा रहा है। b1 is equal to a1 b1, a1 b1, b1 is equal to a1 b1, ऐसे मान लीजिए। व्हाट इज b2, b2 is equal to a2 b2, what is b3, that is a3 b3, what is b4, that is a4 b4। और if you see practical experience आप देख रहे हैं, जितना लिक्विड एक सेकंड में यहां से एंटर कर रहा है उतना लिक्विड यहां से एक सेकंड में बाहर निकल रहा है। इसलिए a1 b1 किसके बराबर होगा, a2 b2 के बराबर होगा, that is equal to a3 b3 और that is equal to a4 b4। but we can write a1 b1 is equal to a2 b2 is equal to a3 b3 is equal to a4 b4, is it? a1 b1 is equal to a2 b2 is equal to a3 b3 is equal to a4 b4, maybe a5 b5 and so on it will go. Now what will find, what is a1 b1, what is this a1 b1, this is the a1 b1 means a1 b1 is equal to volume of
लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। क्या पढ़ेंगे हम A1 B1 को, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग। मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी, कैसे एक्सप्लेन हुआ देखिए। व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज A1 into B1, देखिए A1 into B1 that is I'm saying it is a volume. How it is volume please, but what is the volume? Volume होता है area into length. Area into length, that is called volume. Area into length divided by time, because area into length divided by time suppose करिए। अब velocity क्या होती है आपकी, length upon time होती है। लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम को। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक पाइप है जिसमें क्या हुआ, मैंने यहां से लिक्विड एंटर किया, जैसे मैंने 1 लीटर लिक्विड यहां से एंटर, तो 1 लीटर लिक्विड ने यहां से यहां तक पाइप को कितना घेरा, उसने लेंथ एल का घेर लिया पाइप को। तो उसका कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो मैं इसको बोल दूंगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v होगी, v1 होगी इसकी वेलोसिटी, या v1 हम बोलते हैं। एल अपॉन टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो एरिया इनटू लेंथ, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन टाइम मींस वॉल्यूम पर सेकंड। This is the volume. This is basically volume. Volume upon time. This we can say volume upon second. Volume per second. एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है उसको हम पढ़ सकते हैं A1 B1. What is the meaning of A1 B1? Volume of liquid flowing per second at cross sectional area A1. What is A2 B2? Volume of the liquid flowing per second at cross sectional area A2 B2 and A3 B3 and A4 B4. So what we can write this as A1 B1 is equal to A2 B2, or we can write from here AV is equal to a constant. That is a constant. Means velocity is inversely proportional to area. यहां से क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है हमें? Velocity is inversely proportional to area means if area is large, area of cross section is large, then velocity is less. Means if the area of cross section is less, then the velocity is more. तो बताइए velocity कहां ज्यादा होगी? यहां पे velocity क्या होगी? यहां पे velocity ज्यादा होगी लिक्विड फ्लो की, यहां पे velocity और ज्यादा होगी, यहां सबसे कम होगी और यहां पे उसके बाद होगी। तो मींस बोलने का मतलब क्या है कि velocity inversely proportional to this equation of continuity. What is called equation of continuity. अब इसके कुछ एग्जांपल्स है। यहां पे एक और बात पूछते हैं, अगर हम आपको पूछूं कि मास कितना इसके अंदर एंटर हो रहा है, हाउ मच द मास इज फ्लोइंग, डू यू नो मास, you know density is equal to mass per unit volume, then what is the mass equal to volume into density? It means what I will do, I multiply it with rho, then what will happen here, this give us what, this give us, this is give the mass of the liquid flowing per second, m mass of the liquid flowing per second. Mass of the liquid flowing per second. In this case, this is the mass of the liquid flowing per second. Here all the cases remain B, because it will not change. They all remain same. So we can write it all cases B. This is M, not M1, M2, M3, M4, not B1, B2, B3, B4. So what will happen? You can write here rho. Why I am writing all the cases rho? Because हमारे पास जो लिक्विड होता है, अगर उसको हम कंप्रेस करें तो उसकी डेंसिटी में, जैसे वाटर इज फ्लोइंग दैट इज इनकंप्रेसिबल, तो उसकी डेंसिटी लगभग क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां से डेंसिटी कैंसिल होती है आपकी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई बार हमारे पास पाइप होती है, हमने पाइप से पानी देना है, तो हम मान ऐसे फेंक रहे हैं, हमने किसी अपनी जो गार्डन है उसको क्या लगाना है, उसको मतलब पानी देना है, तो हम क्या करते हैं, पाइप को आगे से उंगली से दबा देते हैं। जब हम पाइप को उंगली से दबाते हैं तो क्या होता है, पानी दूर तक चला जाता है। पानी क्यों गया दूर? क्योंकि आपने किस चीज को कम कर दिया, आपने एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई। When you decrease the area, velocity will increase. That वहां पे कौन से प्रिंसिपल यूज हो रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो रही है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली है क्या, कि यहां पर जितना लिक्विड एंटर हुआ उतना लिक्विड यहां से बाहर होगा, सीधी सी बात है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली। अगर यहां से 5 लीटर एंटर हो तो यहां से 5 लीटर ही बाहर निकलेगा, यहां भी 5 लीटर होगा, यहां भी 5 लीटर निकलेगा। ऐसा नहीं कि पाइप पतली होगी तो उसमें से कम निकलेगा, पाइप पतली हो जाएगी तो लिक्विड का फ्लो बढ़ जाएगा, लिक्विड उतना निकलेगा। अच्छा कितनी पतली आप लोग पाइप ले लीजिए, मान लो मेरे पास इस तरह की पाइप है, सपोज करिए इस तरह की पाइप है, और इस तरह का पाइप है मेरे पास, और इस तरह का मेरे पास सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत है ज्यादा होगी, यहाँ पे एरिया और कम है, यहाँ पे वेलोसिटी और ज्यादा होगी। तो दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए सपोज करिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई रिवर है, ऐसे है, यहां से इस तरह की रिवर है आपकी, तो यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है सपोज करिए। तो मैं एक आपको बात करता हूं, रिवर का एक बेड है, तो रिवर की बेड विड्थ मान लो सेम है, विड्थ ऑफ द रिवर इज सेम, विड्थ ऑफ द रिवर इज सेम, रिवर इज सेम सपोज करिए, रिवर की विड्थ सेम है, लेकिन इसकी हाइट क्या है, डेप्थ यहां से डिफरेंट है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, जब लिक्विड की बात करेंगे हम लोग, जैसे A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग की बात करेंगे, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, तो एरिया के अंदर क्या आता है आपका, एरिया किसके बराबर होता है आपका, दैट इज एरिया इज इक्वल टू
डेप्थ इंटू आपका विड्थ आ जाएगा, जो भी होगा आपका आ जाएगा डेप्थ इंटू विड्थ आ जाएगा। तो देखिए एक बात और है कि जैसे यहाँ पे विड्थ है आपकी वो ज्यादा है तो ये डी वाटर है। आप देखेंगे विड्थ अगर ज्यादा हो तो विड्थ अगर ज्यादा होगी व्हाट विल हैपन कि आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी आपकी वहां पे कम हो जाएगी। और जहां पे आपका क्या होगा विड्थ शैलो मींस डीप वाटर runs flow and which one your shallow water runs fast या स्लो वाटर रन्स डीप। उल्टा करके बोलते हैं मींस अगर आप किसी कहीं पे जाकर नदी देखते हैं तो नदी में कहीं भी पानी बिल्कुल शांत है और कहीं पे पानी बहुत ऐसे टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है, तो बताइए कहां से आपकी रिवर डीप होगी, फ्रॉम वेयर द रिवर इज डीप। बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम है ना मेरे पास, एक्चुअल में वेलोसिटी और इसका मेरे पास वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। जब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इस केस में एरिया जो वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जब डेप्थ होगी बढ़ जाएगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो मुझे ये बताइए डीप वाटर रन स्लो, अगर बिल्कुल शांत रिवर है तो वो क्या नहीं करेगी, क्या नहीं होगा उसमें, शांत रिवर होगी तो बिल्कुल स्लोली चलेगी ऐसे। ये तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल होती है कि जिसको कम नॉलेज है थोड़ा सा पढ़ के आता है वो बहुत ज्यादा बोलेगा, तो जिसको वो पूरा भरा हुआ है वो कभी कोई बात नहीं करेगा इस तरह की कि मुझे बहुत आता है या कुछ आता है। मींस दिस थिंग्स विल मींस जो काम वाटर होता है वो रन्स डीप होता है और जो बिल्कुल पानी कैसे फास्ट मूव कर रहा है इट मींस दैट इज वहां पे डेप्थ जो है वो कम है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एसटे क्लासेस फॉर फिजिक्स। अगर आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लगे, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।